Hello friends, myself Mahesh Kumar and welcome again in my YouTube channel EduFizika. After watch this video, if you like, then like, subscribe and share, please. In previous class, we have discussed about the methods of charging. In previous class, we discussed only one method and I told you 6 methods of the charging. So we go for the next topic, which is charging by conduction, or we can say we study the next method, which is charging by conduction. Okay student, in previous class in the method of friction I told that in this method both bodies gets oppositely charged in equal amount, but in this method we see what will happen. Okay, now come on the board and let me explain. Okay, मेथड ऑफ चार्जिंग, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और वी कैन से चार्जिंग बाय फ्लो. फ्लो मींस हियर इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन्स flow from one body to another body. What is the method? To understand this method, first of all we study about the types of material. How many types of material on the basis of conduction. कंडक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को डिफरेंशिएट करते हैं या मटेरियल के टाइप हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमें थोड़ा ये पढ़ने में क्या रहेगा, इजी रहेगा. तो देखते हैं हम. तो The types of material on the basis of conduction are 3 types. 3 टाइप के होते हैं. First one is conductor, second one is insulator, or we can say non-conductor. The other name of insulator is non-conductor. Other name of insulator is non-conductor. And third one is semiconductor. What is the conductor? Conductor are those material in which outermost electrons are loosely bounded. जो outermost electron होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो कंडक्टर्स के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स loosely bound होते हैं. Means the attraction force of nucleus on these electrons are very weak. And for the insulator, the outermost electrons are tightly bounded. ये क्या रहते हैं, टाइटली बाउंडेड रहते हैं. मींस द न्यूक्लियस फोर्स, और वी कैन से फोर्स बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्ट्रांग. सो हियर these electrons are free to flow. And the examples are given like aluminum, iron, copper, or we can say all metals behave like a conductors. इंसुलेटर की हम बात करें तो इंसुलेटर के लिए मैंने बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, और देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, और इनके एग्जांपल है रबर, ड्राईवुड, पेपर एटसेट्रा. और इजी वे में हम इसको समझें तो जो करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं उनको अपन कंडक्टर बोलते हैं, बट जो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर. बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन वेरी लेस नंबर. सो after applying the electric field, if they flow, then the very small amount of current will flow, which is not sensible. So we can say in normal condition the semiconductor behaves like an insulator, but when the temperature increases of these materials, then the some covalent bonds are breaks here, and some electrons gets free and start to flow in the electric field. In this case they behaves like a conductor. So we can say the semiconductor may behave like a conductor or insulator in different situation. Okay, examples are silicon and germanium. So these are the types of material on the basis of conduction. So now we come on our topic, which is charging by conduction or flow. तो देखिए इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, 2 बॉडी ली है, और इसके लिए जरूरी क्या है, देखिए फ्रिक्शन में तो हमारे पास दोनों ही बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी. हमें दोनों ही बॉडी न्यूट्रल चाहिए थी और दोनों को रब करते थे और दोनों न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाती थी, चार्ज हो जाती थी. बट इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी को क्या लेना पड़ेगा, चार्ज लेना पड़ेगा, और दूसरी न्यूट्रल बॉडी जिसको हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, वो लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, जिसमें ए बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी है और बी बॉडी जो है वो है क्या,
अनचार्ज्ड बॉडी। और इनको मैंने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। स्विच जब ऑन होगा तब उस वाली कंडीशन में ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे इस वायर से, और ऑफ होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कंडक्शन में जरूरी है कि दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए, इसलिए मैंने दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए इनके बीच में क्या लगा दिया है, कंडक्टिंग वायर लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने इस चार्ज बॉडी के साथ इस अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट किया स्विच के थ्रू, यानी कि स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ऑन करते ही यहां से चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज फ्लो होगा और इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा। अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है तो ये फ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन दोनों में इक्वल अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है। बट अगर वो बॉडी क्या नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आती है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम डिटेल से आगे के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बस एक बार के लिए इतना समझ लीजिए, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक क्या नहीं होगा, तब तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम इन वायर्स को हटा भी लेते हैं तो दोनों में क्या रहता है, ये चार्ज इक्वल अमाउंट में, जब वो आइडेंटिकल है तो, और या फिर दोनों में चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस प्रोसेस में एक अनचार्ज बॉडी जो कि बी थी, वही बी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। और देखिए इसको फ्लो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, दूसरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी आइडेंटिकल है तो इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसके पास 10 कूलम होता तो बाद में इनके पास कितना हो जाएगा, 5 कूलम। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होता है तब तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब पोटेंशियल इक्वल करने के लिए इनको कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको समझ में आया होगा कंडक्शन में क्या है। और यहाँ पर एक खास बात देखिए, फ्रिक्शन में दो अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट हो रहे थे दोनों बॉडी में, ए और बी में, जब मैं उनको रब करता था तब। लेकिन यहाँ पर जो अनचार्ज बॉडी है उस पर हमेशा वही चार्ज आएगा जो चार्ज किस पर है, बॉडी ए पर है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, तो देखिए बी पर भी कौन सा आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर मैं यहाँ ए पे नेगेटिव चार्ज लेता तो बी पे भी कौन सा जाता, नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज थर्मोआयनिक इमिशन। देखिए वैसे तो क्या था कि मैंने जो सीरियल में आप लोगों को थर्ड मेथड बताया था वो था कौन सा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट उसको हम एक पूरे टॉपिक में या फिर पूरे एक वीडियो के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ना हमें सभी को है तो पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है। थर्म मींस थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। एक अनचार्ज बॉडी होगी हमारे पास, उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करते ही क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बर्नर लिया है, और बर्नर के थ्रू मैंने एक मेटेलिक बॉडी को हीट सप्लाई करी, और हीट सप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग गए, इससे इमिट होने लग गए। इलेक्ट्रॉन इससे इमिट होंगे तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ थर्मोआयनिक इमिशन, ठीक है। इसमें हीट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को इमिट कर रहे हैं। होता क्या है, हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस से लगने वाला जो फोर्स है, और मैंने बताया मेटल कंडक्टर है, और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू, इसलिए वो इजीली थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही क्या होने लग जाते हैं, इमिट होने लग जाते हैं, और बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सो दिस मेथड वाज थर्मोआयनिक इमिशन। एंड द नेक्स्ट मेथड इज photoelectric effect. Photoelectric effect is very important point because in 12th class में ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। उस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे कैसे कोई बॉडी जो अनचार्ज है वो चार्ज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी is incident on metal, then some electron gain energy from the light and start come out from the metal surface, and the metal becomes positively charged। मतलब क्या है कि जैसे ही हम लाइट एनर्जी
किसी मेटल के ऊपर, ये मेटल है और मेटल के ऊपर हमने लाइट इंसिडेंट करवाया, बट विच लाइट हैविंग सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, इस चीज का आप ध्यान रखें, इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर का लाइट अगर आप इस पर इंसिडेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कभी भी इमिट नहीं होगी। तो जरूरी है कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से हम लाइट जब किसी मेटल पर क्या करवाएं, इंसिडेंट करवाएं, तो वो लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर है वो क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मेटल के होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, जिससे कि एनर्जी गेन करके ये उस बाउंडेशन के अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सो दिस वाज द मेथड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू चार्ज एनी मेटेलिक बॉडी। और इसमें भी देख सकते हैं आप, हम बॉडी को सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, और यहां भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ क्या है, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन यहाँ पर किस, एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को इमिट करेंगे। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चार्ज जाता है तो वो एक फोर्स को फील करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, और उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितने ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होगा उन इलेक्ट्रॉन्स पर उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है कि जैसे मैंने लार्ज मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लार्ज मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी मेटल को रखा, तो मेटल में जो लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स फील ऑल्सो हाई मैग्नीट्यूड फोर्स। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स फील करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये मेटल सरफेस से इस फोर्स से एक्सेलरेट हो जाएंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस मेटल से बाहर आ जाएंगे, और ये मेटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो द मेथड बाय विच we provide the positive charge to the any metallic surface। हाँ, तो हमने देखिए आज 4 मेथड्स पढ़े हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्मोइलेक्ट्रिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमिशन। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी मन करे आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपके YouTube चैनल में फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।